کرنا ہے تو اس بچی کا شکریہ ادا کر جو تجھے گردہ دے کے تیری زندگی بچا کے گئی ہے۔ جیسے اتنا سنا بے قرار ہو گیا، کہا کون تھی وہ بچی، کا نام نہیں بتایا، کہا کہاں کی رہنے والی تھی، کا کچھ نہیں کہا، کہا اب کہاں تلاش کروں، کا میں کیا بتاؤں، کہا کوئی تو راستہ ہوگا۔ اس نے کہا یاد آیا، جاتے جاتے ایک تحریر دے کر کے گئی تھی، اس نے اپنے کیبن میں جا کر کے ڈیسک سے وہ کاغذ نکالا لا کے دے دیا، کہا جاتے جاتے اس نے یہ دیا تھا۔ جیسی اس نے اس کو کھول کر کے پڑھا ہے، ابھی پہلی لائن پڑھی ہے چیخ نکل جاتی ہے، زمین پہ بیٹھ جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا یار بتا تو صحیح اس تحریر میں ایسا کیا لکھا ہے کہ تو خود کو نہ سنبھال سکا۔ اس نے کہا ڈاکٹر میں وہ کم نصیب باپ ہوں جو 10 سال سے اپنی بیٹی کے دروازے نہیں گیا تھا، یہ جو خط ہے میری اسی بیٹی کا خط ہے۔ کہا اس میں لکھا کیا ہے، بچی کا خط پڑھ کے تو سنا، اس میں لکھا تھا ابا جی تیری بے بس اور مجبور بیٹی کا سلام تیری بارگاہ میں قبول ہو، ابا میں وہ کم نصیب بیٹی ہوں 10 سال سے تو جس کے دروازے پہ نہیں آیا، ابا مجھے یہ نہیں پتا میری خطا کیا ہے، میرا قصور کیا ہے، میں نے تیرا بگاڑا کیا تھا، ابا جی تجھے کیا بتاؤں 10 سالوں میں جتنی عیدیں آئی ہیں دنیا چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ چڑھتی ہے لیکن میں اپنا چاند دیکھنے کے لیے دروازے پہ آتی ہوں۔ ابا جب چاند نظر آتا ہے لوگ مبارکبادیاں دیتے ہیں، میرے بچے بھی آ کے کہتے ماں سب نے تو کپڑے پہن لیے ہیں تم کب پہنو گی، تو میں کہہ دیتی ہوں اے بیٹے جب تمہارا چاند دکھ گیا تمہاری عید ہو گئی ہے، ابھی میرا چاند نظر نہیں آیا ہے، جب میرا چاند نظر آئے گا تب میری عید ہوگی۔ اپنے بچوں سے یہ کہہ دیا کرتی ہوں ابا 10 سال ہو گئے تو پلٹ کر کے نہیں آیا، اے میرے باپ تو نے 4 میلیں بیٹوں کے نام کر دی، جائیداد میں مجھے پھوٹی کوڑی نہیں تھی، ابا میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں، مجھے تیری ناراضی کی وجہ تو نہیں معلوم ہے لیکن میرے باپ میں تجھے گردہ دینے آ گئی ہوں، ناراض نہ ہونا ابا، میں تجھے تکلیف دینا نہیں چاہتی، یہ جو گردہ دے رکھی ہوں یہ تجھ پہ احسان نہیں کیا کہ میں نے، اے میرے باپ تو نے 18 سال سینے سے لگا کے پال لیا تھا، اگر جائیداد نہ دی تو کیا ہوا، 18 سال روٹی تو کھلا دی تھی، 18 سال بیٹی کہہ کے آواز تو دیا تھا، 18 سال تو نے سینے سے لگا کے رکھا تھا، یہ تیرا احسان اتنا بڑا ہے، اگر اسی کے بدلے میں جان بھی مانگے گا ابا تیری بیٹی ہنستے ہنستے جان دے دوں گی۔ میرے باپ مجھے پتا چلا تجھے گردے کی ضرورت ہے، بیٹیوں نے بیٹوں نے انکار کر دیا ہے، ابا میں تیری بیٹی ٹھہری، میں برداشت نہ کر سکی، میں تجھے گردہ دے کر کے جا رہی ہوں اور احسان نہیں کیا ہے، اس کی کوئی قیمت بھی نہیں مانگتی ہوں، ابا تیری مرضی ہے عید پہ آنا یا مت آنا۔ بیٹی سے ملاقات کیا ہوتی ہے، ہم بیٹیوں کو لاوارث کر دیتے ہیں، سنیں بیٹی کیا ہوتی ہے، بات یاد آ گئی تو میں یہ بات کر جاؤں۔ اللہ نے ایک امیر کو 4 بڑی بڑی فیکٹریاں دی، کتنی، سو گئے، ختم کر لوں، کتنی دی، سارے بولیں گے تب آگے بڑھوں گا ورنہ محنت کر رہا ہوں میں۔ 4 دی نا، 4 بیٹے اللہ نے اس کو دی، 4 بڑی بڑی فیکٹریاں، لیکن کچھ اکاؤنٹ میں بھی تھا، اس کو اللہ نے بڑی بیٹی عطا کی، بڑی بیٹی ہوئی، اس نے اس کی شادی کر دی، شادی کے بعد کوئی سمدھی سے یا کسی سے انبن ہو گئی، جھگڑا بھی نا ہماری قوم کو تباہ کی ہوئی ہے، آج کوئی چھوٹا ہونا ہی نہیں چاہتا کہ بھئی سلام کر لے، کا کیوں کروں میں اس سے کم ہوں کیا، محاورہ تو ایسے بولتے ہیں مائک میں نہیں بول سکتا، ہاں ممبر کا بھی ایک احترام ہے اپنا، یہ ممبر رسول ہے، اس کی قدر کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، میں نہیں بول سکتا کہا میں اس سے جا کے سلام کروں، بہت گھٹیا جملہ بول کے محاورہ بولتے نہیں، فرمایا گیا جو پہلے ناراض بھائی کو سلام کرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے، ہے نا، مرنے کے بعد سب کو جنت چاہیے اور زندگی میں کسی کو مطلب نہیں، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، ادھر مر جانا تو کہہ رہا میرا ابا بڑے نیک تھے، روز 1 گلاس چڑیوں کو پانی پلاتے تھے، چل چڑیوں کا پانی یاد ہے، اور تیرے ابا نے محلے بھر کا جو خون پی رکھا تھا وہ، مرنے کے بعد میں کی یاد آ رہی ہے، زندگی میں جو اس نے خون پیا وہ نہیں یاد آیا۔ اب تو یہ چاہتے ہیں کوئی مولوی 40 میں آئے اور کہہ دے میں نے خواب دیکھا تیرا باپ جنت میں، یہ رہ کہے گا، صحیح کہہ رہا ہوں میں عقیل بھائی، یہ سوچے بیٹھے مشکل گھڑی ہے، حضرت علی قبرستان سے گزر رہے ہیں، سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور، آواز آئی وعلیکم السلام، آپ نے فرمایا قبر والوں بتاؤ کیا حال ہے، انہوں نے کہا علی پہلے یہ بتاؤ جنہیں ہم چھوڑ کے آئے تھے ان کے کیا حال ہے، کہنے لگے کن کی بات کر رہے ہو، کہا ہم اپنوں کی بات کر رہے ہیں،
मौलाए कायनात फरमाते हैं किसे अपना कहते हो? वो तू जिसे बेवा छोड़ के आया था उसने निकाह कर लिया, जो तेरे यार थे उन्होंने दूसरे दोस्त बना लिए, और वो जो तूने हवेली बनाई थी ना, तेरे बच्चों ने इतनी दीवारें खड़ी की हैं कि घर का घरुआ बन गया है। तेरे बच्चों ने उनका नक्शा ही बदल के रख दिया। किन्हें अपने कह रहा है? अब तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है? उन्होंने कहा हम ये समझते थे बिल्डिंगें गाड़ियां ये कामयाब जिंदगी है। कहा कब्र में आए तो पता चला कि यहाँ पे दुनिया का सिक्का नहीं, जाके जमाने से बता देना यहाँ मदीने वाले की गुलामी का सिक्का चला करता। कहा कैसा पाया? कहा बहुत लज्जतें थी दुनिया में, लेकिन कहते हैं जब मौत का पहला झटका लगा ना, कहते हैं जो कड़वाहट मौत के पहले झटके पे महसूस हुई थी, अभी तक वो कड़वाहट हमारे मुंह से नहीं गई है। खेल नहीं है, बदलो अपने रवैये। वो कहा जब कब्र में आए जो इसने झटका दिया गया, अब तक कांप रहे हैं, बरसों बीत गए, अभी तक वो दहशत नहीं गई है जो कब्र ने झटका दिया था। अभी तक उस दहशत को हम भुला नहीं पा रहे हैं। अली जाओ जमाने को बता देना कि तैयारी कर ले, यहाँ पे दुनिया का सिक्का नहीं हुजूर की गुलामी का सिक्का चला करता है। ओ मेरे भाई कान खोल के सुनो, हुए नाम वरबे निशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, कोई यहाँ दौलत वाला, इज्जत वाला, शोहरत वाला कोई नहीं बचने वाला है, हमें खत्म हो जाना है। मगर खुदारा रवैये बेहतर कर लो, अखलाक अच्छे कर लो। अल्लाह ने 4 बेटे दिए, 4 मीलें दी, मूंछ के झगड़े की खातिर 10 साल बेटी के दरवाजे पे नहीं गया, बेटी से कांटेक्ट ही खत्म कर दिए। लेकिन बेटी तो बेटी होती है। लेकिन देखो हालात बदलने में देर नहीं लगती है। अगर अच्छे दिन ज्यादा नहीं देर टिक पाते हैं तो बुरे दिन भी ज्यादा देर नहीं रुक पाएंगे। अगर बुरे दिन ज्यादा दिन नहीं रुकते हैं तो अच्छों की भी कोई उम्र नहीं होती है। अल्लाह कादिर मुतलक है, जब चाहे तब तब का पलट देता है। कभी तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है, कभी तख्ते से उठा के तख्त पे बैठा देता है। ये वही कादिर मुतलक है, कभी उसकी जात को ना भूलना। अकड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप को उसके आगे झुकाए रखना। कभी दौलत पे गुरूर ना करना, नाक मूंछ के झगड़े को एक तरफ डालो, हुजूर के सच्चे गुलाम हो जाओ। नाक की खातिर उसने 10 साल बेटी को नहीं देखा। इत्तेफाक से तबीयत खराब हुई, दर्द हुआ, हॉस्पिटल लोग लेकर के चले गए। डॉक्टर ने चेकअप करके कहा तेरे गुर्दे फेल हो चुके हैं, अब जिंदगी कम रह गई है। उसने का बड़ा पैसा है, इलाज की कोई सूरत, उसने कहा बच जाएगा अगर तुझे गुर्दा मिल जाए। उसने कहा जितना चाहे पैसा ले ले, अल्लाह ने बड़ी दौलत दी है, गुर्दा चेंज कर दे। डॉक्टर ने कहा नहीं जी ये गुर्दे मिला खरीदा नहीं करते हैं। कहा फिर कई तेरा अपना गुर्दा देगा, उसके बाद तेरी जिंदगी बच पाएगी। बड़ा घमंड था उसे 4 बेटों पर, बड़ा गुरूर था उसको बेटों पर। उसने कहा 4 बेटों के लिए जिंदगी कुर्बान कर दी, पूरा हो गया इन्हें पढ़ाते लिखाते, क्या ये मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? उसने कहा बुलाओ बेटों को। 4 बेटों को जब बुलाया गया, सबसे पहले बाप ने बड़े बेटे से कहा बेटे मैं कुछ और दिन जीना चाहता हूँ, तुम्हारे बीच रहना चाहता हूँ। डॉक्टर ने कहा जीना है तो एक गुर्दा लाना पड़ेगा। बेटे एक गुर्दा दे दे, मैं भी तेरे साथ कुछ दिन जी लूं। बेटे ने इतना सुना, लहजे बदल गए बेटे के। उसने कहा तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो, हमारी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? हम गुर्दा दे करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। जब बेटे ने इतना कहा, उसने दूसरे बेटे की तरफ देखा, उसका भी यही जवाब। तीसरे बेटे की तरफ देखा, उसका भी यही जवाब। सबने इनकार कर दिया। फिर आज आंखों में एहसास के आंसू आए हैं। ख्याल आता है मैंने इनके लिए जिंदगी बर्बाद की जिन्हें मेरी एक सांस अच्छी नहीं लग रही है, जिनको जिंदगी मेरी प्यारी नहीं लग रही है। ओ खुदा का वास्ता बाप की इज्जत किया करो, बाप की कदर किया करो। अगर बाप जान भी मांग ले हंसते हंसते दे दिया करो, इसलिए कि तेरी जान बाप की उस रात की कीमत नहीं चुका सकती है जब वो रात को आधी रात में मजदूरी करके पैदल आया था, कोई सवारी पर बैठाने वाला नहीं था, थक के आया, तूने मुस्कुरा के अब्बा कह दिया था, उसकी सारी थकन तेरे 2 जुमलों से उतर गई थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत। बाप है, और नौजवानों में तुमसे कह दूं, बाप एक दरख्त है, औलाद एक टहनी है। याद रखिएगा, टहनी कितनी भी मजबूत और हरी भरी क्यों ना हो, अगर जड़ से जुदा हो जाती है, तने से टूट जाती है, तो फिर वो हरी नहीं रहती है। बेशक बेशक, ये याद रखना, फिर वो हरी नहीं रहती है। जो औलाद माँ बाप का साये में परवरिश पाती है, उसके वजूद की नशो नुमाई अलग होती है। और जो बाप से दूर रहते हैं वो जिस्म कभी फल नहीं पाते। बेशक, इसलिए कि बाप का साया ही बेहिसाब बरकत वाला होता है, बेहिसाब बरकत वाला। टूट गया बाप, डॉक्टर से कहा चल यार मुकद्दर में जिंदगी की चंद सांसें हैं,
हॉस्पिटल ले चल, इलाज कर। उसने कहा क्या इलाज करना? गुर्दे फेल, फिर आदमी खत्म। कहा कोई तो दवा होगी। कहा कोशिश करता हूं, बचना नहीं है, कुछ सांसें अगर हिफाजत से आ जाए। उसने कहा ठीक। भर्ती हुआ, बेटे लौट गए। बाप नाराज हो गया। जब ये हादसा हॉस्पिटल में हुआ ना तो बात खानदान तक पहुंची, चलते चलते रिश्तेदारियों में पहुंची, फिर ये बात चलते चलते उस बेटी के दरवाजे तक पहुंच गई जिसके दरवाजे पे 10 साल से बाप नहीं गया था। उसके दरवाजे पे पहुंची जिसके दरवाजे पे 10 साल से बाप नहीं गया। उसे पता चला बाप के गुर्दे फेल हो चुके हैं। डॉक्टर ने गुर्दा मांगा कि भाइयों ने देने से इनकार कर दिया कि कोई अपना ही देगा तब जिंदगी बचेगी। 6 माह के बच्चे को सीने से लगाया। 100 किलो 150 किलोमीटर का सफर करके बेटी हॉस्पिटल आ गई। बाप से नाराजगी है। डॉक्टर से आके कहती फला नाम का मरीज किस वार्ड में है? कहा फला वार्ड में। कहा जल्दी कर मेरा गुर्दा निकाल और उसके डाल दे। कहा तू है कौन? का बस ये न पूछ, अब तो सब मना कर चुके हैं, फिर तहकीक किस बात की है? मेरा ऑपरेशन कर, तुझे गुर्दा चाहिए, मैं देने आई हूं। बच्ची ने गुर्दा दिया, वापस जाने लगी। कुछ दिन रुकने के बाद जब वापस जाने लगी डॉक्टर ने कहा बेटी बताना तू है कौन? कहा क्या करेगा पूछ के? कहा अगर मरीज ने पूछा तो क्या बताऊं? कहा कुछ मत बताना। उसने कहा नहीं बताना, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, कुछ तो पता बता के जा, कहां की रहने वाली है? बच्ची ने कुछ नहीं बताया। कहा अगर जिद करता है तो कागज कलम दे दे। बेटी ने एक तहरीर लिखी, लिखने के बाद बंद की। कहा इसको संभाल के रख, अगर निकलने के बाद मरीज खुद पूछे तब ये निकाल के देना, अगर ना पूछे तो दे मत देना, इसे फाड़ के फेंक देना। अल्लाह अकबर। इतना कह के बेटी तो चली जाती है। कुछ दिन के बाद जब उसकी छुट्टी होने वाली है पूरा खानदान आ गया, चारों बेटे आ गए क्योंकि अकाउंट में बैलेंस बाकी था। उन्होंने सोचा मरते मरते अब्बा को राजी कर लो, लेकिन बाप बाप होता है। जब बाप की अना पे आ जाती है तो मर जाता है, लेकिन औलाद के आगे झुका नहीं करता है। बाप को यही एटीट्यूड, यही काफी है कि वो तेरा बाप है। खुदा की कसम जब बेटे दरवाजे पे आके खड़े हुए हैं, सबने कहा था मिलना चाहते हैं, कहा मुझे किसी से नहीं मिलना है। जो लोग खिदमत थे कहा पहले वहां लेके चलो। मैं डॉक्टर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। डॉक्टर के पास बाप गया, कहा यार तेरा एहसान है, मेरे अपनों ने तो ठुकरा दिया था, तूने जिंदगी बचाई है। डॉक्टर ने कहा मेरा शुक्रिया अदा न कर, शुक्रिया अदा करना है तो उस बच्ची का शुक्रिया अदा कर जो तुझे गुर्दा दे के तेरी जिंदगी बचा के गई है। जैसे इतना सुना बेकरार हो गया। कहा कौन थी वो बच्ची? का नाम नहीं बताया। कहा कहां की रहने वाली थी? का कुछ नहीं कहा। कहा अब कहां तलाश करूं? का मैं क्या बताऊं? का कोई तो रास्ता होगा। उसने कहा याद आया, जाते जाते एक तहरीर दे करके गई थी। उसने अपने केबिन में जाकर के डेस्क से वो कागज निकाला, ला के दे दिया। का जाते जाते उसने ये दिया था। जैसे उसने उसको खोल करके पढ़ा है, अभी पहली लाइन पढ़ी है, चीख निकल जाती है, जमीन पर बैठ जाता है। डॉक्टर ने कहा यार बता तो सही, इस तहरीर में ऐसा क्या लिखा है कि तू खुद को ना संभाल सका? उसने कहा डॉक्टर मैं वो कमनसीब बाप हूं जो 10 साल से अपनी बेटी के दरवाजे नहीं गया था। ये जो खत है मेरी उसी बेटी का खत है। कहा इसमें लिखा क्या है? बच्ची का खत पढ़ के तो सुना। उसमें लिखा था अब्बा जी तेरी बेबस और मजबूर बेटी का सलाम, तेरी बारगाह में कबूल हो। अब्बा मैं वो कमनसीब बेटी हूं 10 साल से तू जिसके दरवाजे पे नहीं आया। अब्बा मुझे ये नहीं पता मेरी खता क्या है, मेरा कसूर क्या है, मैंने तेरा बिगाड़ा क्या था। अब्बा जी तुझे क्या बताऊं, 10 सालों में जितनी ईदें आई हैं, दुनिया चांद देखने के लिए छत पे चढ़ती है, लेकिन मैं अपना चांद देखने के लिए दरवाजे पे आती हूँ। अब्बा जब चांद नजर आता है लोग मुबारकबादियां देते हैं, मेरे बच्चे भी आके कहते माँ सब ने तो कपड़े पहन लिए हैं, तुम कब पहनोगी? तो मैं कह देती हूँ ए बेटे जब तुम्हारा चांद दिख गया तुम्हारी ईद हो गई है, अभी मेरा चांद नजर नहीं आया है, जब मेरा चांद नजर आएगा तब मेरी ईद होगी। अपने बच्चों से ये कह दिया करती हूँ अब्बा 10 साल हो गए तू पलट करके नहीं आया, ए मेरे बाप तूने 4 मीलें बेटों के नाम कर दी, जायदाद में मुझे फूटी कोड़ी नहीं थी। अब्बा मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, मुझे तेरी नाराजगी की वजह तो नहीं मालूम है, लेकिन मेरे बाप मैं तुझे गुर्दा देने आ गई हूँ, नाराज ना होना। अब्बा मैं तुझे तकलीफ देना नहीं चाहती, ये जो गुर्दा दे रखी हूँ ये तुझ पर एहसान नहीं किया है मैंने। ए मेरे बाप तूने 18 साल सीने से लगा के पाल लिया था, अगर जायदाद न दी तो क्या हुआ, 18 साल रोटी तो खिला दी थी, 18 साल बेटी कह के आवाज तो दिया था,
18 साल तूने सीने से लगा के रखा था। ये तेरा एहसान इतना बड़ा है, अगर इसी के बदले में जान भी मांगेगा, अब्बा तेरी बेटी हंसते हंसते जान दे दूंगी। मेरे बाप मुझे पता चला तुझे गुर्दे की जरूरत है, बेटों ने इनकार कर दिया है। अब्बा मैं तेरी बेटी ठहरी, मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैं तुझे गुर्दा दे करके जा रही हूँ और एहसान नहीं किया है, इसकी कोई कीमत भी नहीं मांगती हूँ। अब्बा तेरी मर्जी है, ईद पे आना या मत आना, बेटी से मुलाकात करना या ना करना। उसने आखिरी जुमले लिखे थे कि अब्बा तेरी बेटी इतना चाहती है, अगर तुम मुझसे राजी हो गया है तो इतना कर देना, जब मेरे इंतकाल की खबर तुझे आ जाए तो बेटी के जनाजे में आकर के शामिल हो जाना। इसलिए कि अब्बा अगर तू जनाजे में नहीं होगा दुनिया कहेगी ये बदनसीब बेटी का जनाजा है। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि मेरे जनाजे में सबसे पहले लगने वाला कांधा मेरे बाप का हो, ताकि दुनिया कहे ये बदनसीब का नहीं बल्कि खुशनसीब बेटी का जनाजा जा रहा। अल्लाह अकबर। ये बेटी होती है, बेटे वो नहीं कर पाते जो बेटियां कर जाती है। इन्हीं बेटियों को बचाने के लिए मेरा नबी आया, इन्हीं बेटियों को जिंदगी मेरे नबी ने दी है, इन बेटियों पे एहसान है मेरे नबी का। और मैं कहता हूं मेरी बहन, मेरी बेटी, कभी तेरे सर से दुपट्टा उतरने लगे ना तो महबूब की गार के रोने वाली हालतों को याद कर लेना। कुछ भी याद न कर सके तो वो याद कर लेना, तू तो पैदा होते ही मार दी जाती। ये जो घर में तेरी खिलखिलाहट और तेरी मुस्कुराहट है, खुदा की कसम ये मेरे नबी के सदके में बची हुई है, मेरे हुजूर के सदके से बची हुई है। हुजूर ने कितनी इज्जत दे दी, तुझे बाप मार देता था, माथे पे पसीना तक नहीं आता था। जिस दिन से मेरे नबी ने कहा मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, जाओ 80 साल का बुढ़ा भी रक्षा चला रहा है, उससे पूछना अब्बा ये उम्र लक्ष्य की तो नहीं है। वो कहेगा अल्लाह ने एक बेटी और दी है, घर में रह गई है, बस एक तमन्ना है उसके हाथ पीले कर दूं। खुदा की कसम आज 80 साल का बेटा मुस्कुरा के लोगों का बोझ खींच रहा है, उससे पूछ क्यों खींच रहा है? वो कहेगा मेरे नबी ने कहा है जिसने बेटी को इज्जत से रुखसत कर दिया उसकी जन्नत की जमानत मदीने वाला देके जा रहा है। अल्लाह अकबर। ये इज्जत है मेरे महबूब के सदके। लोगों हमें होश से काम लेने की जरूरत है। जिस नबी के सदके में हमें माँ मिली है, बेटी मिली है, बहन मिली है, बाप मिला है, रिश्तों की इज्जत मिली है, कदर मिली है, अपनों की पहचान मिली है, हमारे उस नबी